Good morning, everyone. Dear students, in previous part of this chapter, I told you that the author joined city school and he went there by bus, and the author's grandmother was not in condition to accompany him. Okay, and when the author returned from school, she asked what happened there, what he was taught. Then he shared that he was taught English and Western science, modern science. Okay, so when the grandmother discovered all this, she became disappointed. And she was more disappointed when she came to know that he was not taught anything about gods and religion, scriptures means, है ना. तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि भाई कोई देखो, there was no teaching about God and the scriptures. Okay, so she became distressed, she became disappointed. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. What happened, dear students? One day, the writer told his grandmother that the students were given music lessons also. Means they had a class of music also. Okay, music lessons. देखिए, तो he told that the students were taught music. They had a class of music also. She was very disturbed. So at this, she was very much distressed, very much disturbed. She didn't like music, that's why she got disturbed. To her, music had lewd associations. Beta, lewd means vulgar. ठीक है. According to the grandmother, music had vulgar associations, means music was connected to vulgar people. Okay, it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. So she thought that the music was the monopoly. Monopoly means sole right. SOLE, सोल राइट, एकमात्र अधिकार. ठीक है, सोल राइट होता है एकमात्र अधिकार. तो she thought that music was the monopoly of harlots and beggars. She thought that music was only meant for harlots and beggars. तो harlots होता है prostitutes. ठीक है, prostitutes होती हैं बेटा वैश्याएं. ठीक है, who sell themselves for the sake of money. The women who sell themselves for the sake of money. She thought that music was meant only for harlots and beggars and not meant for gentlefolk, and it was not for gentle people. ठीक है, gentlemen, gentlefolk, ये gentlefolk के लिए नहीं था, gentle लोगों के लिए नहीं था म्यूजिक, because it had vulgar associations. She had nothing, but her silence meant disapproval. She said nothing, but her silence meant disapproval. She did not speak anything, but her silence indicated everything. है ना? She didn't show protest when she came to know that he was taught music, but her silence indicated everything. Her silence showed that she did not approve द म्यूजिक, कि उसने म्यूजिक को वो अप्रूव नहीं करती थी, दिखा दिया उसकी खामोशी ने. बेटा कई बार आदमी किसी बात के ऊपर खामोश रहता है ना, तो उससे पता लग जाता है कि उसको वो चीज पसंद नहीं है. ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि शी वॉज एन एपिटोम ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, है ना. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट आपने एक फ्रेज पढ़ा था. तो इट मीन्स शी लेड हर लाइफ कामली एंड contentedly. तो means she remained silent whenever she did not like something. ठीक है. She rarely talked to me after that, and thereafter she stopped talking to the author. ठीक है, उसके बाद जो है उसने ऑथर से बातें करना बंद कर दिया. पसंद नहीं आता था उसको कि कैसे ऑथर जो है उन सब चीज़ों में ढल रहा है, कैसे उसको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं. तो उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया. ओके, देन when I went to university, I was given a room of my own.
when the author joined university, he was given a separate room. Means the author grew up, and then after growing up, he was given a separate room, personal room. The common link of friendship was snapped. Snapped means broken. The common link of friendship between them was broken. The bond of friendship weakened. टूट गया, or no, sorry, not weakened here, broke. So the common link between them was broken. My grandmother accepted her seclusion with resignation. And the grandmother admitted, accepted means admitted, स्वीकार कर लेना. Seclusion means loneliness, अकेलापन, loneliness. Okay, so the grandmother admitted her loneliness with resignation. Resignation means submission, बिल्कुल सबमिट कर देना, ठीक है, अपने आप को सबमिट कर देना. तो उसने सबमिशन के साथ जो है सेक्लूजन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. द ग्रैंड मदर एडमिटेड हर लोनलीनेस विद सबमिशन, विदाउट प्रोटेस्ट मीन्स, ठीक है. द ग्रैंड मदर एडमिटेड हर लोनलीनेस विदाउट एनी प्रोटेस्ट, ठीक है, एंड विद अ फीलिंग ऑफ सबमिशन, यू कैन से. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. और बेटा क्या करती रहती थी दादी? She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Means she kept kept working at the wheel, spinning wheel. Spinning wheel होता है चरखा. देखा होगा आपने, गांधी जी भी जो है ना स्पिनिंग करते थे, ठीक है, चरखे पर वो काटना. तो चरखे पर काटते थे, दादी भी जो है ना काटती थी, सूत काटते हैं उससे जैसे. तो यही काम वो भी करती थी. एंड शी मीन्स हार्डली लेफ्ट इट टू टॉक एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Means from early morning to evening she kept sitting at her wheel, spinning wheel, and she kept reciting the prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, and she left the spinning wheel only for some time, and it was in the afternoon because she took rest for some time, and during that time she fed the sparrows. Okay, she not only took rest during that time, but she utilized that time to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Okay, so let's see. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, and while she sat in the veranda, और वो जब वेरेंडे में बैठ जाती, breaking the bread into little bits, and then she broke the चपाती into little pieces. वो ब्रेड यहाँ पर चपाती के लिए आया है, छोटे छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स में उसको तोड़ती. hundreds of little birds collected round her, and then hundreds of birds came there. They gathered around her, and they created a veritable bedlam of bedlam क्या होता है? Confusion. Veritable means true, ठीक है, true. और सिरपिंग मीन्स जो उनकी चॉपिंग की आवाज होती है, ठीक है. एंड द बर्ड्स क्रिएटेड कमोशन. द बर्ड्स क्रिएटेड अ ट्रू कंफ्यूजन ऑफ देयर चॉपिंग साउंड. अपने चर्पिंग साउंड से कंफ्यूजन सा क्रिएट कर दी थी, ठीक है. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. देखो स्टूडेंट्स क्या होता था. सम बर्ड्स केम near him and they sat. Perched means sat.
पर्च्ड क्या होता है? सेट, बैठ जाते थे, ठीक है। तो दे सेट ऑन हर लेग्स, उसके लेग्स के ऊपर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम सेट ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड, एंड सम बर्ड्स इवन सेट ऑन हर हेड। भाई सच में ही मतलब सिर चढ़ा रखा था भाई, कहने का मतलब इतना लाड़ करती थी, इतना प्यार करती थी उनको कि वो उसके सिर पे भी बैठ जाते थे, है ना। कितना प्यार देखो। अदरवाइज बर्ड्स जो है ना बेटा दूर भागते हैं, जैसे ही उनको साउंड सुनाई देती है किसी इंसान के पास आने की तो वो उड़ करके दूर चले जाते हैं। पर देखो कैसे उसके सिर पर, उसके कंधों पर, उसके पैरों पर ऐसे आके बैठ जाते थे बर्ड्स, मतलब हाउ मच दे लव्ड हर। ओके, शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, शी enjoyed this time and she never made them run away। देखो शूड अवे होता है भगा देना, मेक समवन रन अवे, किसी को भगा देना। लेकिन देखो वो हंसती थी इस तरीके से, जब वो उसके सिर पे बैठते, उसके कंधों पे बैठते, उसके पैरों पे बैठते, और शी नेवर गॉट इरिटेटेड, शी फेल्ट नाइस, उसको अच्छा लगता था। It used to be the happiest half hour of the day for her, and the time which is spent along with the birds used to be the happiest time, the happiest half hour of her day। ठीक है, if you are asked what was the happiest time for the writer's grandmother, so you will write the answer that the happiest time for the author's grandmother was that was when she enjoyed with the birds। Okay, if you are asked, however this is not much important question, but even then you must come to know the answer। Okay, so the happiest time for the grandmother was along with the sparrows आप कह सकते हैं, birds कह सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स के साथ था उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट। शी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड शी नॉट ओनली टुक रेस्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम शी ब्रोक chapati into little pieces and fed the sparrows, fed the birds, and thousands of birds collected around her, ठीक है, and she enjoyed this time, she felt very nice at this time, ठीक है। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो अब वो बड़ा हो गया और मतलब हायर स्टडीज के लिए उसने जाने का, अब्रॉड जाने का उसने डिसीजन ले लिया, ठीक है। ही न्यू दैट हिज ग्रैंडमदर वुड नॉट लाइक द डिसीजन, हिज डिसीजन ऑफ गोइंग अब्रॉड। उसको पता था कि उसको दादी को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो क्या बता रहा है, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट। द ऑथर न्यू दैट at his decision of going abroad for higher studies, his grandmother would be disappointed and she would not like this decision of his, है ना, she would be annoyed with him। So I would be away for 5 years and he was going abroad for a period of 5 years, not for 1 or 2 days कि भाई चलो जल्दी ही वापस आ जाएगा, 5 सालों में वो आने वाला था, ठीक है। तो उसको पता था दादी ऐसे अपसेट हो जाएगी, निराश हो जाएगी। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और देखो एट हर एज वन कुड नेवर टेल, ये यहाँ पर टेल का डिफरेंट मीनिंग है कि उसकी एज में ये कोई मतलब नहीं वो कर सकता था, कोई इस तरीके से बियर नहीं कर सकता था, कोई टॉलरेट नहीं कर सकता था। द ऑथर हियर वांट्स टू टेल दैट at such an old days nobody can tolerate such a sorrow, है ना। nobody likes to be departed from his dear and near ones, ठीक है। और इतना ज़्यादा मतलब कोई अलग सा नहीं होना चाहेगा, ये सब उसको पता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन कहता है मेरी दादी कर सकती थी ऐसा, यानी दादी टॉलरेट कर सकती थी इस एज में भी।
भाई बुढ़ापे में आदमी वैसे ही कमजोर पड़ जाता है बेटा, वैसे ही वो इस तरह के दुख को, दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कहता है उसकी एज में वैसे ऐसा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन वो कर सकती थी, यानी दादी मतलब बियर कर सकती थी इस दुख को। ठीक है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो यहाँ तक कि सेंटिमेंटल भी नहीं थी। शी वॉज नॉट इवन इमोशनल। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी did not talk or show any emotion. देखिए शी डिड नॉट फोल्टर। शी फोल्टर होता है कमजोर पड़ना, कमजोर नहीं पड़ी वो। शी केम टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब्रोड जा रहा था, तो अब्रोड जाने के लिए जहां से भी उसको फ्लाइट लेनी थी, तो पहले वो जैसे स्टेशन पे उसको छोड़ने आई, उसके बाद जैसे स्टेशन से उसको जो भी है भाई, सपोज करो आप किसी गांव में इसमें कोई बंदा है, और फिर वो पहले रेवाड़ी आएगा, रेवाड़ी से जो है ना ट्रेन में बैठ करके मान लो दिल्ली जाएगा, और वहां से वो फ्लाइट लेगा, तो जस्ट लाइक दैट। ठीक है। तो उसकी दादी उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, और बट शी डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, शी डिड नॉट टॉक टू हिम, एंड शी डिड नॉट टॉक टू हिम, और जो है उससे बातें नहीं की उसने। ठीक है, और इमोशन भी नहीं दिखाई। शी डिड नॉट इवन शो हर एंगर, हर रिजेंटमेंट, हर लिप्स मूव इन प्रेयर। उसके जो लिप्स थे वो भी देखो प्रेयर में से हिल रहे थे, मतलब तो शी वॉज स्टिल सिंगिंग साइलेंट प्रेयर, मीन्स हर लिप्स वर मूविंग, है ना, इट मीन्स शी वॉज सिंगिंग प्रेयर। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और हर माइंड वॉज एब्सोल्युटली लॉस्ट इन द प्रेयर। पूरी तरह से खोया हुआ था दिमाग उसका, ध्यान ही नहीं था मतलब उसका इधर उसके पोते की तरफ। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, एंड शी वॉज टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी शी वॉज कैरिंग। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, एंड साइलेंटली द ग्रैंड मदर किस्ड हिज फोरहेड। उसके फोरहेड पर उसको किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताना चाहा है कि व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला गया वहां से स्टेशन से ट्रेन में बैठ करके, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने चेरिश कर लिया। चेरिश करना क्या होता है, मतलब इंटैक्ट कर लेना किसी चीज को, संजो लेना किसी चीज को, सुरक्षित रख लेना। मोस्ट इम्प्रिंट, मोस्ट मीन्स डैम्प, गीला, डैम्प। ठीक है। एंड इम्प्रिंट मीन्स इम्प्रेशन, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। जैसे हमारे बीच लास्ट जो है फिजिकल कॉन्टेक्ट का साइन हो, क्या, मोइस्ट जो इम्प्रिंट, जो उसने उसके फोरहेड पर प्यार किया दादी ने पोते को, वो गीला इम्प्रेशन जो है वो उसने लास्ट फिजिकल कांटेक्ट के रूप में संजो लिया। उस मोमेंट को, यानी उस एक निशानी को उसने प्रिजर्व कर लिया अपने माइंड में। ठीक है। तो देखिए, द ऑथर्स ग्रैंडमदर केम टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, however she did not talk to him, but she loved him, and she kissed him on his forehead, and the author thought that it was the last physical contact between them, and considering it last sign of physical contact between them, he preserved it in his mind, है ना। Why he took it as the last sign? Because the author thought that after his departure the grandmother would die, she would not be alive। ठीक है, उसको ये था कि भाई दादी तो उसके गम में, उसके दुख में और मर जाएगी, तो उसको लगता था भाई ये तो लास्ट इम्प्रेशन है। ठीक है, लास्ट इम्प्रेशन है जो फिजिकल कांटेक्ट है उनके बीच में उसका। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, बट दैट वॉज नॉट सो। पर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि वो सोचता था ना कि दादी तो भाई उसके जाते ही यहाँ से स्टेशन से, और उसके बाद जो है ना दादी कुछ वक्त के बाद मतलब मर जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बट द ग्रैंड मदर डिड नॉट डाई। ठीक है, शी वॉज ऑल राइट। After 5 years, I came back home and was met by her at the station.
कह रहे आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 years he returned home and he was received by his grandmother at the railway station. Means she loved him deeply. She even went to the railway station to receive him, to welcome him. She did not look a day older, and it was surprising that there was not a little change in her appearance. She looked the same. She still had no time for words. At this time also, she did not speak even a single word. She did not share anything with him. है ना, शी वॉज अनॉइड, उससे अनॉइड थी और वो उनसे बातें नहीं की. एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. एंड मीन्स when she embraced him, he could hear her singing inaudible prayers. कह रहा है कि मैंने जब दादी ने जब मुझे गले लगाया तो उस वक्त मैं सुन पा रहा था कि वो धीरे धीरे प्रेयर्स गा रही थी. मतलब उस टाइम भी है ना, कि अपनी उसने यूजुअल जो रूटीन होती थी उसकी सिंगिंग करने की, प्रेयर्स को गाने की, वो रूटीन उसने नहीं छोड़ी. ठीक है, तो जब उसने क्लैस्प किया, उसको क्लैस्प मीन्स ग्रैस्प करना, पकड़ना, है ना, इन हर आर्म्स, जब उसने उसको अपने आर्म्स में पकड़ा यानी कि गले लगाया, तो उस वक्त भी वो प्रेयर्स बोल रही थी, गा रही थी. She, even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. And he found that even on that day when he returned from abroad, she spent her time with the sparrows, and it was the happiest moment for her. Means she did not deviate from her usual routine. ठीक है, and she fed longer and with frivolous rebukes. Means she enjoyed her time by feeding the sparrows with the frivolous rebukes. frivolous होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, बनावटी, नकली, और रिब्यूक्स होता है डांट फटकार. तो नकली डांट फटकार के साथ उनको जो ना लंबे टाइम से उनको जो खाना खिला रही थी स्पैरोज को, उनके साथ ही उसका वो टाइम बीता, अपनी रूटीन से नहीं हटी. वो देखो, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. इन द इवनिंग सम चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड इन हर बिहेवियर. ओके, शी डिड नॉट प्रे. क्या भाई, क्या नहीं किया उसने? प्रे नहीं किया. मीन्स शी स्टॉप्ड प्रेइंग, है ना, उसने प्रे करना छोड़ दिया. शी स्टॉप्ड प्रेइंग. She stopped praying and she collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. And then she collected all the women of her neighborhood. She called her friends, ठीक है, और द वीमेन लिविंग इन हर नेबरहुड, उनको बुला लिया उसने. और उसके बाद जो है क्या हुआ, शी गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. एंड टेकिंग एन ओल्ड ड्रम she started thumping it and she started singing the songs. For several hours she thumped the sagging, and for many hours she kept thumping. thumped होता है बजाना, ठीक है. she kept thumping और she kept beating the drum. ये sagging जो है ड्रम के लिए आया है. sagging होता है बेटा लूज, ठीक है, जिसकी जो स्किन है, ड्रम की जो स्किन है वो लूज पड़ चुकी थी, मतलब सैगिंग हो गई, सैगिंग स्किन. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक वन क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड कि शी डोंट लाइक म्यूजिक एंड हियर शी इज सिंगिंग सॉन्ग, है ना. तो सॉन्ग भाई ये वो वाला म्यूजिक नहीं है, ये भगवान के भजन है, या फिर ये यहाँ पर जो है ये जो वॉरियर्स के लिए गीत गाए जाते हैं, पर्टिकुलरली उनकी बात हो रही है. तो वो वैसे जो फिल्मों के सॉन्ग आते हैं वो नहीं है इस तरह के, ठीक है ना. तो उसमें बहुत अंतर है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. नाउ लेट्स प्रोसीड. Sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors.
क्या कह रहे हैं, मीन्स इन द इवनिंग अ चेंज वॉज ऑब्जर्व्ड इन हर बिहेवियर, शी स्टॉप्ड प्रेइंग, शी स्टॉप्ड सिंगिंग, जो है प्रेयर्स, है ना, सिंगिंग प्रेयर्स, एंड शी कलेक्टेड women of her neighborhood and in their company she thumped the drum. ठीक है, और कैसा ड्रम था, सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड मीन्स ओल्ड, ठीक है, ओल्ड एंड वॉर्न, पुराना घिसा हुआ, तो पुराना सा एक जो ड्रम था उसकी जो सैगिंग स्किन थी, उसकी लूज स्किन जो थी, पुराना ड्रम था मतलब घिसा हुआ पुराना ड्रम, उसकी लूज पड़ी हुई जो स्किन थी, उस मतलब ड्रम को बजाया उसने, लगातार बजाया, किसकी कंपनी में, वीमेन की कंपनी में, ठीक है। एंड वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। बेटा परसुएड होता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, कि कोई काम करने के लिए किसी को कन्विंस करना, ठीक है। तो कहते कि भी हमें कन्विंस करना पड़ा उसको टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। भाई चिंता हो जाती है ना घर वालों को, अरे भाई बूढ़ा आदमी और इस तरीके से लगातार किसी एक्टिविटी में लगाओ, कुछ हो ना जाए, है ना, चिंता हो जाती है, तो परिवार वालों को चिंता हो गई। हिज फैमिली मेंबर्स वर वरीड अबाउट द ग्रैंड मदर एंड देन दे कन्विंस्ड हर टू स्टॉप बीटिंग द ड्रम टू टेक स्ट्रेस, ठीक है, ओवर स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेस, तो उन्होंने मनाया कि भाई उसको ओवर स्ट्रेस ना ले, वो परेशान ना हो। That was the first time since I had known her that she did not pray. And he came to know that it was the first time when she stopped praying. ये था पहली बार जब उसने प्रे करना छोड़ा था, otherwise she spent her time in praying, most of her time, है ना, in praying. Then the next morning she was taken ill, she मतलब suddenly became ill. The next morning she became ill. She had taken over stress, and due to over stress she became ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. The doctor was called, है ना dear students, the doctor was called and the doctor informed them that she had mild fever, she had a little fever, and the doctor assured them that it would go, she would be all right. But my grandmother thought differently, but the grandmother had some different viewpoint about it. She told us, means she had some intuition. देखो वो कुछ अलग ही सोचती थी, मतलब कि she had some intuition, उसको कुछ intuition था। यहाँ पर intuition होता है मतलब कुछ आभास हो जाना पहले से ही। She told us that her end was near. She told the family members that she मतलब was near death or she might die anytime. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, and she told them that before the closing of her of the last chapter of her life she had stopped praying, है ना। अभी देखो उसने शाम को प्रे करना छोड़ दिया था, तो उसकी जिंदगी का ही लास्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी, ठीक है, तो उससे जस्ट पहले उसने प्रे करना छोड़ दिया था। ओमिट करना, ओमिट मीन्स मिटा देना, रिमूव कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो she had stopped praying. She was not going to waste any more time talking to us. So she made it clear that now she didn't want to waste more time in talking to them. She wanted to resume prayer. ठीक है, but she told that she had stopped praying. मतलब बाय इवनिंग, शाम से ही मतलब वो प्रे करना जो है बंद कर चुकी थी, है ना। तो अब क्या था कि उसको जो है उसने मतलब शी मेड इट क्लियर, शी टोल्ड देम क्लियरली दैट शी डिडंट वांट टू टॉक टू देम एंड शी वांटेड टू रिज्यूम प्रेयर। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, ऑल द फैमिली मेंबर्स प्रोटेस्टेड, दे ट्राई टू कन्विंस हर नॉट टू डू सो, है ना, दे ट्राई टू टॉक टू हर, तो उनको परसुएड करने की कोशिश की, उसके उस व्यवहार का विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, बट शी डिड नॉट पे अटेंशन टू देम, शी जस्ट वाज डिटरमिन्ड टू डू व्हाट शी वांटेड। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, और शी ले पीसफुली, देखो पीसफुली लेटी रही बेड पर,
praying, and she kept singing prayer and telling her beads, and she also means chanted the she chanted the prayer and told the beads of the rosary. Even before we could suspect, her lips stopped moving and her rosary fell from her lifeless fingers. And just then, her lips suddenly stopped. Her lips became still, and the rosary fell down from her hands, from her मोशनलेस फिंगर्स. कोई उनमें मोशन नहीं थी, एकदम से निर्जीव सी हो गई और उनमें से वो माला छूट करके नीचे गिर गई. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. And then paleness spread on her face. पीलापन उसके चेहरे पे छा गया. ठीक है. डलनेस छा गई, मतलब डलनेस spread on her face, and they understood that she was no more. ठीक है भाई, दादी जो है एक्सपायर हो गई. बड़ी दुखद घटना है ना. आजकल तो भाई ऐसा ऐसा ही पढ़ रहे हैं हम. कुछ तो कोरोना से डेथ पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर भी जो है ना इस तरह का कुछ हो गया. चलो खैर, ये तो भाई ऊपर वाले की इच्छा है ना. तो उसकी दादी जो थी वो भाई एक्सपायर हो गई. We lifted her off the bed and as is customary. तो राइटर कहता है देखो, हमने उनको बेड से मतलब नीचे उतारा. दे रिमूव्ड her dead body from the bed and as is customary laid her on the ground, and as is a custom they kept it on the floor, on the ground. उन्होंने इसको ग्राउंड पे रख दिया डेड बॉडी को. भाई कस्टम होता है, डेड बॉडी को ऐसे बेड के ऊपर नहीं रखा जाता, तो उसको नीचे लिटा दिया गया जमीन पर. एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड एंड अ रेड विंडिंग शीट. ये श्राउड जो होता है ये क्या होता है बेटा? विंडिंग शीट, कफन. ठीक है, एक कफन से उसको कवर कर दिया गया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ देर के बाद. आफ्टर अ फ्यू आवर्स, देखो कुछ घंटों के बाद. मॉर्निंग, मॉर्निंग देखो स्पेलिंग इज डिफरेंट. ये वो मॉर्निंग नहीं है गुड मॉर्निंग वाला, है ना. ध्यान से देखेंगे, ये मॉर्निंग का मतलब है वो करना, शोक करना. भाई किसी की मौत के ऊपर जो शोक प्रकट करते हैं, रोना, विलाप करना, वो होता है मॉर्निंग. ठीक है. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. Then all the family members started crying. They started mourning over her death, and then they went here and there to make the arrangements for her cremation. ठीक है बेटा, उसके क्रिमेशन के लिए भाई वो अरेंजमेंट करने चले गए इधर. जो भी कुछ उनको सामान चाहिए था ये वो लाने के लिए, तो इधर उधर चले गए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. And in the evening, we went to her. अब हम चले गए, कहाँ चले गए? उसके रूम में गए शाम को, मतलब with a crude stretcher. एक स्ट्रेचर, क्रूड एक तरह से जो ना सॉलिड, एक सॉलिड सा बनाया हुआ एक स्ट्रेचर, स्ट्रेचर जिसके ऊपर उसको लटाया गया था. जैसे अर्थी, अर्थी के लिए यूज किया गया है क्रूड स्ट्रेचर. टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उसको क्रिमेशन के लिए ले जाने के लिए हम एक क्रूड स्ट्रेचर के साथ टेम्पररी, एक तरह से आप ये पर लगाएंगे. क्रूड का मतलब टेम्पररी भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर तो क्रूड स्ट्रेचर को लेकर के उसको दफनाने के इरादे से जो है हम उसके रूम में चले गए. द सन वॉज सेटिंग एंड द सन वॉज सेटिंग and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब देखिए, the sun was about to be set, अभी सेट होने वाला था, सेटिंग हो रहा था मतलब, ठीक है, और बिल्कुल सेट होने वाला था. एंड हैड lit her room, और उसके कमरे में अभी थोड़ी रोशनी आ रही थी. एंड veranda and with a blaze of golden light, जो सूरज की गोल्डन लाइट थी वो अभी एंटर कर रही थी. ठीक है. We stopped halfway in the courtyard, तो कह रहे कोर्ट यार्ड में जाकर के आधा रास्ता जो है ना रुक गए. तो दे स्टॉप्ड हाफ वे, दे स्टॉप्ड ऑन द वे टू द कोर्ट यार्ड. जो आंगन है, आंगन के रास्ते में आधा जा करके ना वो रुक गए बीच में. दे स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द कोर्ट यार्ड. ऑल ओवर द वेरिंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. ऑल ओवर द वेरेंडा, सारे वेरेंडा में, इन हर रूम, और उसके रूम में भी, राइट अप टू वेयर शी ले डेड.
देखिए बिल्कुल वहाँ से जहाँ पर वो डेड मतलब उसकी बॉडी रखी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, मतलब रेड श्राउड में लिपटी हुई जहाँ उसकी बॉडी रखी थी वहाँ से थाउजेंड्स, वहाँ भी मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर बहुत सारी जो स्पैरोज हैं वो बैठी, ठीक है, ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इवन इन हर रूम, even in her room where the dead body was kept covered in the red shroud, thousands of sparrows scattered, ठीक है, बहुत सारी स्पैरोज वहां पर इकट्ठी हो गई थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, देयर वॉज नो साउंड ऑफ द बर्ड्स, देयर वॉज नो साउंड ऑफ चर्पिंग ऑफ द birds. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. बर्ड्स को फीड कराने वाली आज जिंदा नहीं थी, तो ये सोच करके उनका बड़ा अफसोस हुआ राइटर को, उनकी फैमिली को, ठीक है. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. फेच होता है गो एंड ब्रिंग समथिंग. then his mother went inside and brought some bread for the sparrows, for the birds. She broke it into little crumbs, and then she broke the bread into little pieces. Crumbs होते हैं pieces. The way my grandmother used, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दादी किया करती थी, है ना. His mother brought some bread from the kitchen, and she broke it into little broke the chapatis into little pieces, and just like the way the grandmother did, and threw it to them, and she gave the pieces to the birds. The sparrows took no notice of the bread. लेकिन देखिए, the sparrows did not pay attention to the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. And when the dead body of the grandmother was taken away, corpse क्या होती है? Dead body. When the dead body of the grandmother was taken for cremation, the birds flew away quietly, silently. Okay. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin, and next day the sweeper cleaned the bits of the bread. Means the sparrows did not eat them, they did not even chirp, and they silently flew away. In this way, the sparrows also expressed their sorrow over the grandmother's death. Students, you may have noticed one thing here, that even nature expresses its sorrow over the death of a pure-hearted soul. है ना? The author's grandmother was a pure-hearted soul. She was a divine beauty, and on her death, even nature was bereaved. Bereaved means शोकाकुल. नेचर भी शोकाकुल थी. ये स्पैरोज के थ्रू दिखाया हुआ है यहाँ पर. तो बहुत ही मतलब एक स्ट्रेंज बात है कि नेचर इस कदर जो है किसी के लिए विलाप करे, किसी के लिए दुख मनाए. तो इसका मतलब उस इंसान में कुछ खास होगा, उसमें कितनी डिवाइन ब्यूटी थी. सोच के देखिए कितनी जो है एक दया भाव, क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर रही होंगी जिसकी वजह से वो नेचर को भी इतना पसंद आई थी, मतलब. ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर बेटा ओवर. थैंक यू.